I've been called on like corporate shows saying East India Company, and I've gone on stage and some people are just looking at me कि ये East India Company वालों को तो भेज दिया था ना हमने. Hello, namaste, assalamu alaikum. Welcome to Good for Us, and today we're going to discuss the T20 World Cup 2022, and this is the final showdown. This is the final one out of all the discussions we've had, and thankfully, I have someone who I've been a big fan of for a number of years. East India Company ho jaye, baby over ho jaye. Angad Saab is one of my favorite comedians, and people might be like, "What? How?" He just is. I don't know why. You just make me laugh whenever you say something really funny or the way you say it. Angad Saab, thank you so much for joining. कैसे हैं आप? देखो, I know you are in UK, but I was not part of East India Company. I was part of East India Comedy. The entire idea was कि pun वो है कि we are the comedy. The C stands for comedy. That's right. But thank you so much for having me. I didn't know you have had multiple discussions with multiple people क्या on this topic. It's more like I'll talk to people that I want the opinions of, and then release each of those videos, and then in the end I'll just merge and do it per country and just get as much content as I can for the next week and a half. Wow, man, you're really working hard, Bhaskar, and I do nothing for Baby Over, man. Our subscribers will kill us. No, they'll be fine. They love your content. It doesn't matter. आप एक दिन करो, 2 दिन करो, 2 साल बाद करो. Everyone's gonna follow you. Don't worry. Don't make any content. So that this is the only T20 World Cup discussion you have on YouTube. So that people say Baby Over cricket to T20 World Cup, तो सिर्फ यही आएगा. So I'm okay with that. I'm just here because I feel that somewhere down the line, maybe you can help me get settled in UK. So that's my whole agenda of being part of it. Then we can fire Bhaskar, and then you and I can do this. Yeah. Live, sitting next to each other. Oh, वो तो views पे views पढ़ना शुरू हो जाएंगे. That would be unbelievable, genuinely. Let's get to it because I know you have a very, very busy schedule. So let's start and talk about the T20 World Cup. So we're going to split it into 2 groups. Obviously, जो Group 1 है, Group 2. तो Group 2 से शुरू करते हैं. बाकी हर conversation मैंने Group 1 से शुरू किया है. Why not do it slightly different? Let's talk about Group 2 first. जिसमें you have India, you have Pakistan, you have South Africa, and Bangladesh. And let's start with India. Last year, I thought everyone was hyping about India winning it and everything. लेकिन आपने अभी मुझे off camera ही बताया that everyone was not doing that. It's a lot more confidence now. But so how do you see India in this year's T20 World Cup? So I feel this year definitely our batting is clicking way more than last year. Last year, if you remember, उससे just पहले IPL ही था. And literally हमारे playing 11 में कोई fit ही नहीं, ऐसा लग रहा था कोई form में नहीं है. Fit तो नहीं, but like Surya Kumar Yadav was the only person. Hardik Pandya over डालेगा नहीं डालेगा कुछ पता नहीं था. I think this time around the confidence is way more. We also have a finisher in Dinesh Karthik, sort of that specialized spot कि वो सिर्फ 4 ओवर ही बैटिंग करने आएगा, उससे ज्यादा वो बैटिंग कर ही नहीं सकता. It's not allowed to him. But I think the bowling, Bumrah injured, Harshal Patel not being so effective, so that is still under some stress. How do you see Ravindra Jadeja? आपको लगता है अक्षर पटेल वो bowling side से is he kind of countering the loss of Jadeja? Bowling wise, yes. I think bowling wise, Akshar Patel has been in good form. Luckily for India, भी एक warm up game भी हुआ था, though he didn't take many wickets, but his economy इतना haywire नहीं था. Like for a 4th bowler, I think he does the job. अगर अक्षर पटेल एंड हार्दिक पांड्या मिलाकर 6 ओवर हर मैच में दे दें रोहित शर्मा को, आई थिंक रोहित शर्मा विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. These options are key. मतलब T20 में तो if you don't have many bowling options, 100% 6 तो चाहिए ही. एंड बोथ मतलब आई फील अक्षर पटेल 5th नहीं, अक्षर पटेल 4th बॉलर का भी काम कर देता है कभी हार्दिक पांड्या कर देता है. So that is very important. Batting wise, yes, it's a question mark. But I feel हर्षल पटेल थोड़ा वहां कंपनसेट कर सकता है. ये अभी न्यूज़ आई है. I think I was watching on Sports Yari or something about Shardul Thakur, Mohammad Siraj, and one more person whose name starts with S has been selected. और वो उड़ रहे. शामी तो कोविड हो गया था ना, कोविड हो गया था, इस चक्कर में गया नहीं था. He was supposed to. I didn't know कि शार्दुल and Siraj you are saying. Yes, Shardul, Siraj and Shami are all flying to Australia. उनमें से एक पिक करेंगे actual 15 में. तो आपको क्या लगता है किसको पिक करना चाहिए? Just because उन्होंने गेम खेल लिया, I feel Siraj should be picked. Because he's just, I know ODI is there, but he has some game time. मोहम्मद शामी का प्रॉब्लम ही है यार, उसने 6 महीने से T20 क्रिकेट ही नहीं खेला है. We were the entire time, we were like, अरे अवेश खान आएगा, then we were like, नहीं अवेश खान लग नहीं रहा आ पाएगा.
तो शामी को ले आते, फिर उस बेचारे को कोविड हो गया फ्रॉम द एंटायर T20 सीरीज, ही कुडंट प्ले. सो it's really a coin toss with for experience शामी. बट यार हमेशा कोई बंदा इंजरी से आता है या गेम टाइम उसको नहीं मिलता है, वो मैचेस खेलने आने में उसको टाइम लगता है हमेशा जस्ट टू गेट इनटू दैट जोन. एंड सिराज इज somebody who is very good in extracting bounce from the pitch. ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हो रहे हैं, so might not be a bad bet, but I have a feeling the selectors will go with Shami. Okay, no, I think that makes sense. ये हमेशा होता है ना, लॉजिकल चॉइस क्या है और सेलेक्टर्स क्या करेंगे. So that's always a discussion, whichever team it is. Let's talk about Pakistan. Well, not talk about Pakistan. If you had to pick one player, एक player from India that you think is going to be like the MVP कह लो या player to watch out for, who would that be? So I feel like I'm going to put out a big statement. I feel T20 India में ना that icon in the team is Surya Kumar Yadav. Like जिस तरह हम बोलते हैं ना कि टेस्ट टीम विराट कोहली है या आपका बाबर आजम ने, चलो टेस्ट टीम में तो कम है, ओडीआई में लाइक, और T20 में लाइक यू टॉक अबाउट मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम. I feel the equivalent is not Kohli and Rohit Sharma for India right now. It is Surya Kumar Yadav. He's just been in sensational form. एक वार्म अप गेम में भी उसने वहां पे भी 50 मार दी. तो वो लड़का रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसको तो वही कंटिन्यू करना पड़ेगा. बट इफ आई फील एनी टीम which will win the World Cup will be the team जिनके all-rounders बहुत अच्छा करेंगे. It's just giving that depth in batting and depth in bowling. So if your all-rounders are in good form, I just feel like both batting and bowling wise, you get a lot of options. Definitely. I think वो है ना, you need 360 players or you need someone who can do more than 2 jobs rather than just having one. So totally get that. अगर पाकिस्तान की बात करें, Pakistan is the next team I want to discuss. They've gone up and down. मतलब this series against England 4-3 हारे, लेकिन 6-1 हारनी चाहिए थी. ठीक है. They have the third of it. Honestly, I think with their top order, मैं तो personally I'm okay with it. Like Rizwan and Babar do the job, but ये middle order का issue आ रहा है and stuff like that. It's the same problem that India has been facing for like I think the last 3 years in white ball cricket. कि हमें नंबर 4 नहीं मिल रहा है, नंबर 4 नहीं मिल रहा है. Like in the 2019 50 ओवर वर्ल्ड कप हमने 4 बारी तो नंबर 4 चेंज करें. लोगों को फ्लाइट से बुला लिया कि भाई ये बंदा इंजर्ड हो गया, तू नंबर 4 बन. एंड आई फील लाइक पाकिस्तान का T20 टीम का वही हाल है. ये बेचारे मिडिल ऑर्डर को लेके बड़े कंफ्यूज हैं. और क्योंकि रोल सिग्निफाई नहीं कर सक रहे ना, ओके दिस इज योर रोल, दिस इज योर रोल, दिस इज रोल, तो वो कंफ्यूजन फैल रही है. आप अगर इंग्लैंड का लो, इंग्लैंड की हम बात करेंगे, बट विद इंग्लैंड the fact is anyone after Malan can bat at 4. Anyone until 8 or 7 can bat at 4. So they know what their role is. Unfortunately, Pakistan में they don't know exactly what their role is. तो इसलिए issues ज़्यादा आ रहे होते हैं. तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान in terms of being ready for the T20 World Cup या their performances potentially in the World Cup, क्या लगता है कैसा खेलेंगे? यार अभी I feel like chances थोड़े इशू हो जाते हैं because जब तुम्हारे मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है ना, you will always get stuck in a knockout game. वो राउंड रॉबिन में पता चला रिजवान और बाबर आजम खेल के बढ़िया खेल रहे हैं और सेमीफाइनल में दोनों ही पहले ओवर में आउट हो गए. एंड देन हाउ डज द टीम रिस्पॉन्ड टू दैट, एंड दैट बिकम्स अ बिग इशू. तो हमेशा जो ये मिडिल ऑर्डर वीक वाली टीम है, इनके मुझे वर्ल्ड कप में चांसेस कम लग रहे होते हैं, कम द एलिमिनेटर. Makes sense. And if you had to pick one player from Pakistan, because obviously you mentioned Rizwan, you mentioned Babar, अगर आपको एक प्लेयर पिक करना होता, वो कौन होता? I think अपना वो कौन है, वो जो ऑलराउंडर जिसने भी मारे थे, नसीम शाह. नवाज सॉरी I'm really bad. नसीम शाह ने छक्के मारे थे सर. Don't worry. हाँ मारे थे, एंड में मारे थे उसने. Yes. But Nawaz and then Haris Rauf. हारिस रऊफ तो यार उसका तो बहुत अच्छा चल रहा है. On top of that, he was kind of discovered in Australia as well, which is a benefit for him. Okay, fantastic. Next, South Africa. South Africa से तो अभी इंडिया ने खेला है. But what do you think? Who from Pakistan are you banking on? Apart from the top 2. हाँ, I'm not counting the top 2. I think genuinely, Shaheen Shah fit हो ना fit हो, Shadab Khan. I think Shadab Khan is going to be very crucial. Be it the bouncy tracks में वो spinning कैसे करता है, उसकी fielding. तो he is the Ravi Jadeja of Pakistan. Yeah. He's very good at fielding. Yeah. Right. So you have to consider that. So if Ravi Jadeja was fit, I'd say Jadeja for India. Right. So it's the same way Shadab Khan, if he stays fit, because there's a history of Pakistani players coming back too soon after injury और फिर ज़्यादा लंबी break लेते जाते हैं. So hopefully that's not the case. But bowling में हो जाए, fielding में हो जाए, and then with the bat,
the more opportunities he gets in the top, मतलब top 4, top 5, ज़्यादा नजर निकल के आएगा, because we've seen him in the PSL performing like this, के आता है 157, 158 का strike rate है, average of 35, 40, so it's really beneficial if Pakistan gives him the opportunity. तो मेरा तो यार शादाब खान 100%, लेकिन हारिस रऊफ का I think that's a very very good shout. हारिस रऊफ तो definitely ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत अच्छा खेलता है. मैं साउथ अफ्रीका की इसलिए बात करना चाहता हूँ, नंबर 1 वो इस ग्रुप में है ऑब्वियसली, लेकिन ऑल्सो द फैक्ट कि अभी इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज भी खेली है और ODI सीरीज भी खेली है. अगर T20s में देखें, आई थिंक इंडिया जेन्युइनली बॉलिंग की वजह से भी मार खा के भी दे स्टिल डिडंट लूज द मैच, क्योंकि बैटर्स इतने अच्छे चल रहे थे. तो साउथ अफ्रीका यार कैसा लग रहा है आपको? बिकॉज यू मेंशन्ड के मिडिल ऑर्डर जिनका वीक हो उनका आपको थोड़ा डर लगता है, बट साउथ अफ्रीका मिडिल ऑर्डर ही है, ठीक है. देयर ओपनर्स अनफॉर्चुनेटली एक ओपनर ले कैप्टन बवूमा को हटा दें, हेंड्रिक्स को अगर उन्होंने खिला दिया, हेंड्रिक्स चल रहा है आपका, ये क्या नाम है उसका, मिलर भी फॉर्म में ले आए. डिकॉक नॉर्मली पाकिस्तान ये करता है ना, ये बांग्लादेश करता है, दे मेक अ प्लेयर कम बैक इनटू फॉर्म, लेकिन इस सिचुएशन में आपने वो कर दिया. तो हाउ डू यू सी साउथ अफ्रीका इन दिस T20 वर्ल्ड कप? Yeah, South Africa is always one of those teams कि तुम्हें जब वो उनको खेलते हुए लगते हो, you are like, why will this team ever lose a match? Like when they start winning games, उनका bigger problem is, I think, उनको अपने कैप्टन को निगल देकर इंजर करना पड़ेगा एंड बोलना पड़ेगा, बड़ी तू नहीं है तेरे को हम वर्ल्ड कप में कैप्टन. आई थिंक बवूमा भी इतने टेरेबल फॉर्म में कि वो शायद स्क्वाड में भी नहीं होना चाहिए. सो इट्स दैट बिग अ स्टेटमेंट. बाकी तो यार आई ऑलवेज फील लाइक उनके बॉलर्स इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द बाउंस फ्रॉम द पिच, साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ दोस टीम्स जो सबसे सेटल्ड है अपने स्पिनर्स के साथ. उनको कोई टेंशन नहीं, उनको पता है केशव महाराज और शामसी एकदम सिक्योर सरकारी नौकरी है उनकी, कहीं नहीं जानी है. एक मैच में रन पड़ गई है, फिर भी 2 स्पिनर खिलाने तो कौन खेलेंगे, केशव महाराज और शामसी, और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास. सो दे आर वेरी सेटल्ड, बट वो ये लेट्स सी इन हाउ in high pressure situations how they are able to play well. एक डेविड मिलर है जो मुझे कभी लगता था कि ऐसा लगता था उसको कभी फॉर्म में देखा ही नहीं है, and the last 1 year he has been playing really well. So यार वो हर तरह से सारे टिक मार्क मारते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका को ना लोग डिस्काउंट कर रहे हैं just because top order weak है and you know the star player Quinton is not in form. तो लोगों को लग रहा है, but I feel like they might throw in a surprise. आप सरप्राइज कह रहे हैं, मेरी प्रिडिक्शन इज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका इन द टॉप 4. सो आई हैव ऑलरेडी गिवन देम दैट अपॉर्चुनिटी कि हां ठीक है वो हो जाए, बिकॉज़ इफ आई से पाकिस्तान एंड पाकिस्तान डजंट मेक इट, थोड़ा बंदा उदास होगा ना. पाकिस्तान इज ऑलवेज डार्क हॉर्सेस. if they're favorites they'll never get through. 2003 सोच ले, 2007 सोच ले, they didn't get through. So that's the tactic I use for any cricket tournament, especially with Pakistan and even India to an extent, but I think India's team is a lot more settled then these other teams. अगर आपने एक प्लेयर पिक करना होता साउथ अफ्रीका में से, आपने क्विंटन डिकॉक की बात की, आपने मिलर की बात की, इनमें से पिक करेंगे या किसी और को पिक करेंगे? I feel for South Africa, हाँ, मतलब I think Quinton coming back in form for them would be very crucial in Australia. तो अगर वो consistently उनको टॉप ऑर्डर का रन दे देगा, as we have discussed, middle order sorted है, so yeah, Quinton is there, has to be their MVP. Yeah, I totally get that. और यार in the way that he plays, मतलब ये मुझे मिलर वाला ही मैच याद आ रहा है. He only scored 60, but he carried the innings until the end, और मिलर ने आके वो 100 मार दिया था. हाँ, but उस वाले मैच में वो started off very slow, उसका कैच भी ड्रॉप हुआ था एक. Yeah, but वो है ना कि वो you get some runs under your belt, so you get confident going into batting the next time. Yeah, totally. Last team group 2 में is Bangladesh unfortunately कभी अच्छा नहीं खेलती वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में, as a मतलब getting to the semis or getting the finals or anything. अब वो क्या लगता है इस दफा कोई चांस है बांग्लादेश का, considering जो उनकी साइड है? नहीं, मतलब जब तू मुझसे ये एक प्लेयर पूछ रहा था तो मुझे लगा यार ये बांग्लादेश का भी पूछेगा. बांग्लादेश के तो मैं प्लेयर्स के नाम याद कर रहा था भाई, स्क्वाड में शाकिब याद रखे बस, शाकिब बेस्ट है भाई. वो कुछ नहीं होगा तो एंटरटेनमेंट के लिए स्टंप्स उखाड़ देगा सारी. So that will be interesting. हाँ यार बांग्लादेश तो आई थिंक नहीं, मुझे वो अब फायर नजर नहीं आ रही. पता है कुछ, आई रिमेम्बर द 2016 वाला वर्ल्ड कप था, आई थिंक, जहां तक वो मैच इंडिया के साथ काफी क्लोज तक ले गए थे. उस टाइम पे यू कुड सी सम फायर इन बांग्लादेश क्रिकेट, राइट?
They wanted to win matches and win ODIs, और ऐसा लगता था कि in 3-4 years we might see them winning test series also on a regular basis. But in the last 2-3 years ऐसा फील नहीं होता कि वो फायर थोड़ी चली गई है बांग्लादेश, especially after that this नागिन bullshit that they have done ना, उसके बाद मुझे लगता है उनका ध्यान ही सिर्फ वो नागिन डांस में रह गया. And I feel उन्होंने लोगों को और खुंदक ही दिलवा दी उनके ऊपर. Like everybody has like, I feel like India पाकिस्तान भी दूसरे को हेल्प करेगा, भाई बांग्लादेश से जीत जाना, तो उनका नागिन डांस नहीं हमें देखना. Probably even ICC is calling up teams and be like, please, on the World Cup we don't want Nagin dance. Can we ensure कि वो ना हो? Do you know what? If Bangladesh thinks that they can beat some of the the associate nations if they qualify, right? वो हरा के वो नागिन डांस करेंगे. आप तो सोचो आयरलैंड अगर नागिन डांस कर रहा हो against Bangladesh, that's something I think that's something. Yeah. Okay. I'm not going to ask you about a player क्योंकि kind of हमने बात कर ली. शाके भी है यार, मतलब आज भी आप देख लो. I don't know if you watched the match, लेकिन बांग्लादेश न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड scored 200 odd, Bangladesh scored 160, but because of who? Largely due to Shakib Al Hasan. तो once again उनका वही फॉर्मूला उनका वही चल रहा है. Let's talk about Group 1. एक अभी सीरीज चल रही है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज चल रही है, जिसमें इंग्लैंड बहुत क्लोज जाके, मतलब अपने T20 मैचेस ना आराम से जीतने या सुपर क्लोज करके दूसरी टीम को मोरल कंप्लीटली डाउन कर देना कि ओ तुम जीतने वाले और फिर उन्हें हरा देना. तो इंग्लैंड काफी अच्छा जा रहा है. ये मतलब पाकिस्तान की सीरीज देख लें आप, ऑस्ट्रेलिया की देख लेते, बेसिकली वन द सीरीज. एक मैच बाकी है, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं. सवाए एक जॉर्डन को अभी भी उन्होंने डेथ बॉलर बनाना है, ठीक है, लेकिन उसे पढ़नी है जब भी बॉले करा रहे हैं. तो आपको इंग्लैंड के चांसेस कैसे लग रहे हैं? यार इंग्लैंड के तो बहुत हाई चांसेस है. आई थिंक उन्होंने T20 फॉर्मेट को बहुत बढ़िया तरह से अडॉप्ट कर लिया है. वो तो टेस्ट क्रिकेट भी T20 की तरह खेलना तैयार हो गए. तो उनकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है. मतलब आज तो बैटिंग फर्स्ट भी जीत गए, जो मैं बोल रहा था कि लाइक आई फील लाइक जो टीम लाइक श्रीलंका भी जब एशिया कप जीता तो फाइनल बैटिंग फर्स्ट जीत गया. लाइक मुझे लगने लगा तब टीम में ना कॉन्फिडेंस आ गया अपने ऊपर कि भाई अपने कोई टेंशन नहीं, अपन संभाल लेंगे जो भी करना है अपने को. तो इंग्लैंड में तो मुझे ऐसा मतलब इंग्लैंड इज वन ऑफ दोस टीम्स व्हिच आई फील कैन फील्ड द इंग्लैंड बी टीम आल्सो, कि आ जाओ भाई अपन भी खेल सकते हैं एट अ वर्ल्ड कप लेवल. एसोसिएट्स को तो डेफिनेटली आराम से हरा ही देंगे इंग्लैंड बी टीम. सो आई फील लाइक इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग टीम यार. इट विल बी अ अपसेट अगर इंग्लैंड लाइक सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंचता. हाँ, आई एग्री. मैंने यही नोटिस किया कि आप उस पूरी ग्रुप में भी देख लो. यस, यू हैव टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान भी कभी कभी कर लेता है. यू माइट हैव श्रीलंका डिपेंडिंग ऑन ये जो एसोसिएट कहता जा रहा हूँ, राउंड 1 है उसमें श्रीलंका तो एशिया कप विनर्स, दे आर प्रोबब्ली गोना गेट थ्रू एनीवेज. तो श्रीलंका भी मतलब इट सीम्स हाईली अनलाइकली कि इंग्लैंड विल नॉट गो थ्रू बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंट T20 प्ले दैट दे हैव. आपने इंग्लैंड बी की बात की है. कपल ऑफ इयर्स अगो आई थिंक पाकिस्तान आया था इंग्लैंड सी के खिलाफ खेलने और पाकिस्तान हार गया था बिकॉज दे वर एबल टू फील्ड अ टीम आउट ऑफ नोवेयर. मतलब 2 दिन पहले सारों को कोविड हो गया और उन्होंने नई टीम निकाली एंड दे एक्चुअली वर रियली रियली इंप्रेसिव. इफ यू हैड टू पिक वन प्लेयर फ्रॉम द इंग्लैंड लाइनअप, वो कौन हो? I think Josh Butler ही मतलब it's just when Josh Butler starts scoring runs, I think rest of the teams मतलब rest of the players are just too relaxed. I mean हमने IPL में भी देखा है कि जब जॉश बटलर रन बनाना शुरू कर देता है बाकी टीम को लगता है कि रन बनाने की जरूरत ही नहीं है. The thing is they just have all match winners. उनके सब बंदे अपने अपने दिन पे हाथ खड़ा कर सकते हैं. तुम ये नहीं बोल सकते ये इस बंदे का फॉर्मेट है. दो डेविड मलान चली एक फॉर्मेट में बहुत बढ़िया तरीके से रहा, बट अब डेविड मलान भी ऐसा नहीं लगने लगे उसकी स्ट्राइक रेट इंप्रूव हो गई है. मुझे लगता था पहले वो स्लो खेलता है, मुझे लगता है ये फास्ट खेलता है सबसे ज्यादा. England is just too strong a team. I feel they have like apart from maybe Chris Jordan, they have like 10 match winners within their team. Finally भी सालों साल में पता नहीं कभी ना कभी आ ही जाता है वापस फिर से मैचेस खेलने के लिए. ऐसा लगता है अभी तो रिटायर हो गया था, but then again he is back and he is playing so well. मोइन अली is the embodiment of an English शाहिद अफरीदी. ठीक है, रिटायरमेंट 2 दफा, बॉलिंग भी ठीक करा लेता है, बैटिंग में एक मैच में 40 of 20, फिर 2-3 डक्स आएंगे या 1 of 1 ऐसे करके स्कोर्स. बट थैंकफुली फॉर इंग्लैंड रिसेंट फॉर्म इंग्लैंड क्या, आप सीएसके के लिए भी देख लें आईपीएल में वो चलता जा रहा है काफी देर से, मतलब अच्छा चल रहा है पास्ट ईयर एंड हाफ. ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें सर, ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग एट होम, करंट T20 चैंपियंस, क्या लगता है फिर से जीतेंगे? अब एक तो लास्ट वाला वर्ल्ड कप मैं थोड़ा काउंट करता नहीं हूँ. सारे लोग नहीं काउंट करते यार, कोई काउंट नहीं करता. हाँ, लास्ट वाला तो उनको मतलब, और वो जीत भी ऑस्ट्रेलिया गई ना, मतलब एक तो अलग दुख उसका होता है क्योंकि हम सारा 90s का क्रिकेट देखते आए हैं. ऑस्ट्रेलिया की जीत में कभी ज्यादा खुशी होती नहीं.
बट यार मतलब टीम तो वो भी स्ट्रांग है, होम की सारी एडवांटेजेस हैं, ऑलराउंडर उनके पास है। कैमरन ग्रीन स्क्वाड में नहीं था, इंडिया ने इंश्योर करा कि उसको स्क्वाड में डाला जाए। बंदा 2 ओवर भी दे देगा तुम्हें, ओपनिंग भी करने को तैयार है। सो दे मतलब उनके उसमें तो मुझे बस वो क्वेश्चन मार्क लगता है कि स्टीव स्मिथ, एरन फिंच क्या कर रहे हैं टीम में। आई डोंट नो, स्टीव स्मिथ is there to ensure कि there is one batsman till the end while others are attacking. Aaron Finch का फॉर्म का था पता नहीं चलता। I think few matches he has played at number 4 also. Yes, yeah. ग्रीन जब ओपन कर रहा था तब वो 4 पे आया था। 4 पे आया था। is Maxwell in form right now? इंडिया के अगेंस्ट तो नहीं था। नहीं, he's still not. हाँ, स्टिल नॉट वेरी गुड। तो ये थोड़े बहुत देखो, इंडिया के अगेंस्ट फॉर्म में नहीं आया तो बाकियों के अगेंस्ट फॉर्म में आना मुश्किल हो जाता है। सो आई फील लाइक उनके वो क्वेश्चन मार्क चल रहे हैं प्लेयर के फॉर्म के ऊपर लेकर। तो इट विल इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे परफॉर्म। बॉलिंग यूनिट इज अ स्ट्रॉन्ग यूनिट दैट दे हैव, दो T20 is a format in which Pat Cummins goes for a lot of runs. But Hazelwood, Stark and अपना Zampa, they do a good enough job. I feel semi-finals they should reach. Home condition का advantage तो हमेशा रहता ही है यार। I agree with that. और ये यही है ना, होम फील्ड का एडवांटेज है। ऊपर से आपने बात बिल्कुल सही की, इन टर्म्स ऑफ मोस्ट ऑफ देयर प्लेयर्स देयर इन फॉर्म, देयर डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब। कुछ है, मैक्सवेल हो गया या स्मिथ को तो काफी मैचेस खिलाए भी नहीं है, तो देयर इज डाउट ऑन द फैक्ट दैट विल ही बी इन द बेस्ट 11 फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो वो देखना पड़ेगा। एक प्लेयर अगर आपको पिक करना होता ऑस्ट्रेलिया का जो आपको लगता है मतलब उनका की हो सकता है this year, who would that be? David Warner, I think I'm either going for फॉर्म में आगे से 70 मारे रिसेंटली एंड आई जस्ट डिडंट बिलीव दैट। मतलब इतनी देर से आप अगेन आईपीएल में कुछ नहीं किया, उससे पहले कुछ नहीं किया, उसके बाद कुछ नहीं किया, अब फॉरेस्ट से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, चलो फॉर्म में आ जाते हैं वापस। फॉर्म में आ जाते हैं। आईपीएल में तो बेचारे के साथ बहुत ही बुरा हुआ पिछले साल। पिछले साल तो सॉरी उससे पिछले साल तो दिल्ली आ गया था वो। बट हाँ मतलब डेविड वार्नर इज वन ऑफ दोस पीपल जो मुझे लगता है कि बिग मैच डेज पे या बिग टूर्नामेंट में ही कम्स बैक इनटू फॉर्म। And again, it's the same Josh Butler effect that David Warner has. मतलब David Warner 10 ओवर में मैच खत्म कर देगा। बिल्कुल, नहीं 100%. He's got that ability. मतलब he's done it for so long now, be it in whatever format. तो मुश्किल होता है to look past him. न्यूजीलैंड के पे बात करते हैं। न्यूजीलैंड ने आज once again they scored above 200 बांग्लादेश के खिलाफ। ऊपर से पाकिस्तान को कल हराया, आराम से बॉलिंग हो जाए, बैटिंग हो जाए, फील्डिंग हो जाए। They're doing a pretty good job. But prior to this, New Zealand had a horrible year. Be it in whatever cricket, ठीक है। पिछले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीते, फिर उसके बाद वर्ल्ड T20 के फाइनल में पहुंचे, उसके बाद से कुछ कर ही नहीं सक रहे। तो यार ये इन्होंने भी वही ऑस्ट्रेलिया का रोल निभाया है कि पूरे साल गद्दा खेलो, सारे लोगों को लगे इजी हो जाएगा, एंड देन दे स्टार्ट कमिंग बैक इनटू फॉर्म। मतलब विलियमसन को अगर साइड पे करते हैं, विलियमसन स्टिल डजंट लुक लाइक द सेम विलियमसन, लेकिन फिन एलन चल रहा है, डेविन कॉनवे चल रहा है, आज गप्टिल ने भी अच्छी बैटिंग की थी। तो क्या लगता है न्यूजीलैंड का क्या सीन लग रहा है आपको? वही सरप्राइज एलिमेंट है उनके साथ हमेशा। एंड एक तो लगता है इतनी तो इनकी कम पॉपुलेशन है, पता नहीं इतने बेहतरीन खिलाड़ी ये कहाँ से निकाल लेते हैं वहां में से। केन विलियमसन, यू आर राइट, आई थिंक उसका जो एल्बो इशू है दैट्स बीन बॉदरिंग हिम एंड ही हैज जस्ट नॉट बीन द सेम केन विलियमसन इन द लास्ट 1 year और सो। सो इट रियली डिपेंड्स अपॉन कि बैटिंग यूनिट में बाकी लोग कितना अपना हाथ रेस कर सकते हैं। बॉलिंग उनका टाइट ही रहता है हमेशा, and there are some people I think who will enjoy Australia ka pitches, but because their group is very difficult, and again one of the it's one of those things na ki tum pehle do matches haar gaye, it's very difficult to enter semi-finals or make a comeback. तो इसलिए मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के चांसेस थोड़े कम हैं। आई थिंक असेसमेंट बिल्कुल सही है। ये कुछ टीम्स तो यार पिछले साल का मैं एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ, साउथ अफ्रीका won 4 मैचेस तब भी क्वालीफाई नहीं किया है यार उनके तो ये ज्यादती हुई थी। अगर एक प्लेयर होता न्यूजीलैंड से दैट यू वुड फील के वुड बी देयर की, हु वुड दैट बी? यार आई थिंक न्यूजीलैंड को तो बहुत सारे प्लेयर्स चलने की जरूरत पड़ेगी। बट मतलब आई फील लाइक द बॉलिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टिम साउदी एंड ट्रेंट बोल्ट ऑफ the impact that they can leave, because I feel like batting में I know वो runs बना रहे हैं अभी, but against bigger attacks उनकी क्या consistency रहती है देखना पड़ेगा। So I feel it is one of those teams will depend upon their bowling executing all the plans. बिल्कुल। ऊपर से क्राइस्टचर्च का ग्राउंड भी छोटा है, तो the grounds aren't as big as Australia.
no doubt. तो इसलिए वो भी you have to take that into consideration. ऊपर से Lockie Ferguson is not fully fit. If he was fit, I would think कि मतलब he walks into the team और वो जो जैसा bowler है, he can make sides quiver in their feet for sure. Is Jamieson there? Kylie Jamieson? नहीं, वो नहीं है, टीम में नहीं है. Adam Milne है. फर्गसन भी है, बट फर्गसन के अभी निकल या कुछ हुआ है. मिचेल अभी निकला है, डैरल मिचेल, आपको याद होगा पिछले साल से he's injured or something's happened, so he's unavailable for the T20 World Cup, लेकिन he was very crucial last year. तो हाँ, नहीं, बात तो बिल्कुल सही है. एक आखिरी टीम है अफगानिस्तान, a team that loves to play against Pakistan and India and Bangladesh, and उनको अलग ही उसमें स्क्वाड में डाल दिया, उनको अलग ही ग्रुप में डाल दिया. Like इनको कर देना चाहिए आईसीसी को, that one group is Asia group and the other is non-Asia. Asia group, बिल्कुल. इतने Asian versus other. आपको याद है वो होता था यार, एशियन टीम वर्सेस वर्ल्ड, एशिया 11 वर्सेस अफ्रीका 11 और ऐसे करके करते थे. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मुझे तब पता चला था ROW रो नहीं होता, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है. तो हाँ, अफगानिस्तान के यार कुछ प्लेयर्स हैं उनके जैसे टॉपर, और आप गुरबाज देख लो, आप जजाई देख लो, ज़दरानो ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अभी यूएई में. फिर नबी है, राशिद खान है, मुजीब है, फास्ट बॉलर्स भी उनके निकल के आ गए. ये फरीद और फजल हक फारूकी है, नवीन उल हक है. तो अफगानिस्तान का क्या लग रहा है आपको यार? मुझे वही है ना कि वो एज अ टीम बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेलते हैं, या होंगे भी तो जो स्टार प्लेयर्स हैं वो कोई ना कोई तो लीग खेल ही रहे होंगे. आइसलैंड में जाके T10 क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई अंटार्कटिका में खेल रहा है, कोई मार्स पे खेल रहा है. तो आई फील लाइक वो टीम वाला ना बॉन्डिंग उनका नहीं है. और वो एशिया कप पे भी both, I feel like Sri Lanka and Afghanistan are coming, the team is coming from a situation where the country is in a difficult state or something, but Sri Lanka में ना वो फील हुआ कि वो टीम की तरह खेल रहे थे. They were backing each other. एक अच्छी परफॉर्मेंस आई, एंड वो टिपिकल मूवी में होता है ना, किसी ने एक स्पीच मारी और एकदम सबके इमोशंस खड़े होकर वो खेलने लग गए. वहां पर एक बढ़िया बैटिंग परफॉर्मेंस हुई एंड एवरीबडी टर्न अराउंड. बट वो अफगानिस्तान के साथ वो चीज नजर नहीं आ रही है. I though love watching Afghanistan play because जो सेम हम बोलते हैं ना, पाकिस्तान के साथ एक अनसर्टेनिटी होती है कि वो किसी मैच में 250 मार देंगे, फिर वही प्लेयर उसी पिच में 125 पे भी आउट हो सकते हैं. एंड आई थिंक अफगानिस्तान उस तरह का एंटरटेनमेंट देता है, लाइक यू जस्ट नेवर नो. सही बात है. अगर एक प्लेयर पिक करना होता, आप किसको पिक करेंगे? आई थिंक राशिद खान ही यार अफगानिस्तान का. मतलब अगर अफगानिस्तान हैज टू रीच लाइक सेमीफाइनल्स और फाइनल्स, लाइक राशिद खान हैज टू बी द हाईएस्ट विकेट टेकर. एंड बैट्समैन भी समझ लेना, ये अभी गुजरात टाइटंस के लिए भी उसने बैटिंग की थी, मतलब लेता है वो नीचे आकर. बट अभी राशिद खान के साथ वो हो गया ना कि लोग उसको अपनी विकेट ही नहीं देते. बट इफ ही फाइंड्स अ वे टू गेट दोस विकेट्स, बिकॉज़ मिडिल ओवर्स में फिर वो खत्म कर देगा दूसरी टीम को. बिल्कुल. आई थिंक इन ऑस्ट्रेलिया आप ही प्लेज BBL एज वेल, तो ऑस्ट्रेलिया में उसको काफी समझ आ गया हाउ टू बॉल देयर. और with regards to players who play in Australia, there's a couple that do play in the BBL from Afghanistan. तो वो भी उनके चांसेस और ये सब तो होंगे. हाँ बिल्कुल. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच. बस लास्ट क्वेश्चन, एक प्लेयर आपको लगता है पूरे टूर्नामेंट, वो होता है ना प्लेयर ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एक प्लेयर आपको पिक करना हो अभी, प्रेडिक्शन कौन होगा? सूर्य कुमार यादव. क्या बात है. I could not have guessed. Gotta back the boys. Fantastic. नहीं, बिल्कुल सही है. Thank you Angad साहब यार. I've been wanting to do a collaboration with you for like 10 months. Finally we got a chance, to thank you so much. Yeah, finally we made it happen. Thank you so much for having me. It was a fun conversation. I'm glad. I felt like I am a chief selector sitting here, selecting players from each team. Well, you are the ICC chief selector. मतलब सारी टीमों में से पिक कर ले आपको. But no, thank you from the bottom of my heart. Genuinely appreciate it. For everyone watching, thank you so much for watching. Please do like, share, and subscribe. Do check out Angad Saab on every single platform, be it on Baby Over, be it on East India Comedy. Not anymore, but you know, I had to fix it because I mean, I have my own YouTube channel where I upload my stand-up comedy. So it's Angad Ranial, which is where I will tag this as well. Just to clarify, don't worry. But mujhe basically na, I know this is being recorded anyways, but I remember just randomly finding EIC. So the first thing that popped in my head was East India Company. तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं कि comedy है. Lot of people make the mistake. Like we have been called on like corporate shows saying East India Company, and I have gone on stage and some people are just looking at me कि ये East India Company वालों को तो भेज दिया था ना हमने, ये अभी क्यों आ गए वापस? And then I have to clarify कि guys, it's comedy. Saurabh Pant का दिमाग था, he loves puns.
we just loved this pun, and from that day onwards, all of us, all 7 of us, have to keep explaining to people he's actually comedy and not comedy.